Up to this, you might have studied the the role the how to create quality for the different avenues at the different avenues like design, uh, that yeah, purchasing, manufacturing, and manufacturing. So today we will start the next avenue where the where if we will look for the quality, then the quality then the sales of the product will certainly be improved. So today we will see the how the different topics and subtopics related to managing the quality for after sales and services. In this lecture we will consider the quality, we will discuss how the quality makes sales, or how the quality is responsible for enhancement of the sellability of a product. And next topic we will see how quality as an aid in competition. Actually, in this cutthroat competitive era, we have a lot of competition. We have to compete with our competitive organization which are producing the similar product, and until unless we will not compete, then the fate of the organization will jeopardize. Next to the quality as an aid in competition, we will discuss the development of quality reputation, that is the brand name, or we can also call it as the enhancement of the goodwill, the trustworthy, and the brand name too. So after this we will also discuss the after sales and services. What is after sales and services, how the planning is to be done for after sales and services, and the different factors responsible for after sales and services for managing the quality. And after this we will consider the advertisement of quality, and at last we will discuss the quality improvement through customer feedback. So let us start with the topic quality makes sales. The two main factors which influences purchasing decision are the price and the quality of a product. When you are going to the market, probably first how you start purchasing, first you think about your need or requirement,
and then you look the product available in the market which is best satisfy your need or requirement, uh, in best manner, and that is what you are looking for, the quality. The product which satisfy your requirement in the best manner has the highest quality, your expectation. Suppose you are purchasing a product X and you are in need, your expectation, if a product available in the market captures the is having the same thing your as per your expectation, then its quality is 100. And after looking this, you are considering the by looking only the quality, you are not purchasing. Means when you are ordering or purchasing a product, only when the cost or price of the product written on the bill is not matching to the money available in your pocket. So consequently you can understand there are two things, that is the quality. First you are looking for the quality, and then you are going for the then you are looking the price. If these two things are the okay as per your pocket and your expectation, then probably you are ordering for the product, or in other words it can be said that you will purchase that product if its quality and the price is as per your expectation. Okay, so it is well known that in competitive market the sales of a product may suffer if it is priced too high. Certainly, what is not so well appreciated is that a product can also be driven out of market on account of its poor quality. Definitely, you can see the different product existing into the market going is after some time nobody will admire that product, because some other product in that same line comes which has the better quality than that of, or the new product coming into the market which has the same quality but at the less price, and in this way that product is the sales of that product is going down and finally it vanishes from the market. What is not so well appreciated is that a product can also be driven out of the market on account of its poor quality. It is possible to fail in business even though the quality of the product is good. Oh, this is a very good quote. Even it has the good quality, but even though it is not being purchased by the customer, even a product is having the
high quality, or it covers all the expectations of the customer. Uh, However, it is not possible to stay in business if the quality is poor, unless one has monopoly. Unless one has monopoly. Suppose uh, even uh, in the suppose monopoly, you can better understand in this manner, means only one company is there which is producing that product. Then whatever the quality they will offer, the people will purchase. At what price? कहते हैं ना, मजबूरी में लोग खरीदते ही हैं. So if we do not have the monopoly, then certainly the people won't purchase. If at the same cost another product is available of same quality but at the less price. So it is therefore essential that the importance of product quality in creating and maintaining sales is realized by everyone in the company, and conscious efforts are made to achieve a high standard of quality to enhance the sales appeal of a product. So with this you might have understood the how quality is related to the sales or the sellability of the product. Next to this, we will consider another topic, that is the quality as an aid in competition. So you can think like the quality is a potent weapon or a great tool in competition. Means with the help of quality you can pave into the market, or you can stand in the existing market. Suppose a product is available in the market of quality level 80% of, and it is offered at the price suppose 100 rupees, but if you will come in the market of a product having quality more, that is 85% or 90%, but at the same price, then probably your product will be admired in the market. Okay. So quality is a greatest weapon to pave into the market, sometimes even more effective than price. For instance, a particular line of company may be losing sales at a competing product being sold at lower price. The company may not be able to reduce the price of its product due to factors such as high cost of labor or unfavorable location of the plant. In such a situation, it could mount on attack on the quality front. So if we are not able to decrease the price, then to enhance the sale, certainly we have to go for the improvement in quality. Okay. So by improving the quality of the product, it may take out of the competing products class
Certainly, if the quality will be improved, the class of the product will be improved. Uh, Means high class product. High quality means high class product. For the success of this strategy, there should be a distinct improvement in quality so that the product is visibly superior to the competing brand and can justify a higher price. This says that it means that after enhancement of the quality, then after a long you have the opportunity to increase the price also. The company has the opportunity to increase the price since its brand will be increased. And the price, whatever the price you will increase will be justified by the customer that yes, it has the higher quality, that is why its price is high, and it will be afforded by the customer. The use of quality as a weapon may take other forms such as better after sales service and longer guarantee period. These are the two other things. Means after sales service means when a product is sold, even though the company is in touch with the customer, that is the after sales service. And longer guarantee period. Guarantee is somewhat very crucial, and it is one of the ingredient of the quality. If guarantee is more, if it is guaranteed, means it has quality. Okay, guarantee is synonymous to the quality you may consider. However, this should be backed by improved quality and reliability. Otherwise, the company may lose on excessive claims, which can also deal a serious blow on the company's quality reputation. Okay. So, next with this, you might have understood the quality as how the quality can be considered as an aid in competition. Means with the quality you can compete in the existing marketplace. The next topic which we will consider, that is the development of quality reputation. Any salesman will tell you that quality reputation of a company is great asset which makes selling very much easier. Means if a salesman is selling, he will feel more easy to sell the product of a branded company. If the suppose two salesmen are there, means while selling, the salesman need not to say much. Means as everyone knows that the brand of the company, means you may consider with the, I am giving you one example. सपोज कीजिए कि एक LIC का क्या कहते हैं एजेंट आपके पास आया इंश्योरेंस करवाने के लिए, और एक दूसरे प्राइवेट कंपनी का आया. तो आप जानते हैं कि LIC इज रिलायबल. मीन्स वो ज़्यादा भी नहीं बोलेगा और उसका ज़्यादा बिकेगा भी. मीन्स उसको कुछ बताना नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी इट इज़ ए ब्रांडेड. ठीक है. तो उसी टाइप से
यदि कोई बाटा का जूता बेचने आता है उसको नहीं कहना पड़ेगा कि यार बाटा इटसेल्फ ऑल नोज दैट द क्वालिटी ऑफ द बाटा. ओके. Next to that, the reputation also helps in growth and diversification. Growth means if the reputation is good, then certainly the sales will go high and it will grow. And diversification means if a company wanted to diversify means that company is making another product. आपको हम एक एग्जांपल से बताते हैं, probably you will better understand the development of quality, that diversification. कि टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी पहले क्या बनाया, तो सबसे पहले उसने स्टील बनाना शुरू किया. ठीक है भाई, स्टील बनाना शुरू किया तो स्टील में उसका बहुत अच्छा मार्केट हुआ, उसका बहुत अच्छा ब्रांड नेम हो गया. उसके बाद क्या किया कि स्टील में उसका चूँकि ब्रांड नेम बना तो अब लोग टाटा का ही स्टील प्रेफर करने लगे, तो उसका ग्रोथ हो गया टाटा का. अब उसके पास बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, बहुत ज़्यादा रेवेन्यू आ गया, उसके मार्केट शेयर्स बढ़ गए, मीन्स बहुत ज़्यादा लोग खरीदने लगे. अब उसका ब्रांड नेम हो गया, तो उसने क्या किया, डाइवर्सिफाई किया कि मतलब टाटा मोटर्स आ गया. अब वो ट्रक बनाने लगा. ट्रक बनाने के बाद उसने क्या किया कि भाई चलो अब हम क्या कहते हैं स्मॉल कार्स बनाने लगा उसी ब्रांड पे. इवन द टाटा हैज स्टार्टेड द कंसल्टेंसी सर्विस and by virtue of Tata, the Tata consultancy services grown more. ये बहुत ज़्यादा एडमायर्ड हो गया. इनको बहुत अच्छे क्या कहते हैं प्रोजेक्ट्स मिलते हैं जस्ट ऑन अकाउंट ऑफ द रेप्यूटेशन ऑफ द टाटा. उसके बाद क्या हुआ, टाटा क्या कहते हैं होटल के भी बिजनेस में आ गया. ठीक है, तो ये क्या हुआ, डाइवर्जन लेते हैं ना हम लोग. जब हम लोग चलते हैं तो क्या करते हैं कि इधर से रास्ता नहीं है तो क्या करते हैं एक और रास्ता बना लेते हैं, डाइवर्ट हो करके फिर उसी डाइवर्ट हो जाते हैं. डाइवर्ट होने का मतलब ये है कि वो प्रोडक्ट को छोड़ नहीं देंगे, मतलब उसके बाद हम एक और डाइवर्जन ले लेते हैं. डाइवर्सिफिकेशन मतलब दूसरे एरिया में भी दूसरे काइंड ऑफ प्रोडक्ट भी बनाने लगते हैं. ठीक है. Let us consider another example. Let us say a company making kitchen appliances has been able to establish a good reputation for the quality of its product. Okay. तो किचन के प्रोडक्ट में इस कंपनी का बहुत अच्छा, एक कंपनी का मान लीजिए बहुत अच्छा नाम है, मान लो हॉकिंस है, हॉकिंस का प्रेशर कुकर. ठीक है, अब प्रेशर कुकर के अलावा उसने क्या किया और भी कोई चीज़ बनाने लगा. ठीक है, नाइफ़ बनाने लगा, हॉकिंस का नाइफ़. तो लोग हॉकिंस का नाइफ़ भी खरीदेंगे, कहेंगे अच्छा भाई हॉकिंस का कुकर बढ़िया था तो इसका नाइफ़ भी बढ़िया होगा. और दूसरा भी जो वो डाइवर्सिफाई करेगा तो उसका नाइफ़ भी बढ़िया चलेगा. ठीक है, विद दिस एग्जाम्पल यू माइट हैव अंडरस्टूड द डाइवर्सिफिकेशन. ठीक है. ए कस्टमर हु हैज़ हैड ए हैप्पी एक्सपीरियंस विल प्रॉब्ली एडमायर द डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट. ठीक है, एक आदमी जो उसको एक प्रोडक्ट का यूज कर लिया है और बढ़िया पाया है तो ऑटोमेटिक है कि भाई वो दूसरा प्रोडक्ट के लिए चला जाएगा. हाउ इज़ द क्वालिटी रेप्यूटेशन इस्टेब्लिश्ड, इट इज़ द $1 million क्वेश्चन. भाई इसको इस्टेब्लिश कैसे किया जाए, हाउ द ब्रांड नेम इज़ टू बी इस्टेब्लिश्ड. ओके, वन ऑब्वियस आंसर मे बी द हाई पावर्ड advertisement. No doubt
A quality image can initially be created by a well-directed sales promotion campaign, ठीक है, but the image will not endure unless the words are matched by deeds. भाई एक बार तो हम सामान को बेच सकते हैं कह सुन करके, चलो भाई, जैसे मान लो एक कोई कॉलेज शुरू किया, तो कॉलेज शुरू किया तो क्या कहेगा भाई ठीक है नया कॉलेज है, चलो लोगों ने ले लिया। उसके बाद अब वो एक लड़के ने एडमिशन ले लिया, अब क्या है कि दूसरा वो अपना भाई बहन का वहाँ पे एडमिशन कराएगा या नहीं कराएगा, ये डिपेंड करता है कि वो कैसा एक्सपीरियंस किया, ठीक है, कि इफ़ द जो ये है ये वाला क्या कहते हैं until unless unless the words are matched by deeds. वर्ड्स मतलब जो हमको उनको कहते हैं कि हम ऐसा करेंगे, ऐसा हॉस्टल होगा, ऐसा हमारे यहाँ पढ़ाई होगा, ऐसा हमारे यहाँ क्वालिटी के टीचर होंगे, तो यदि वैसा नहीं हुआ तो आप फिर से अपने भाई का, छोटे भाई का या और किसी को रेकमेंड नहीं करेंगे, कहेंगे भाई ना ठीक बात नहीं है। तो वर्ड्स जो उनका था और जो किया डीड्स दोनों में मैच नहीं है, ठीक है। तो ब्रांड नेम कैसे बनता है कि जब वर्ड्स और डीड्स जो हम कहते हैं और जो हम करते हैं दोनों में अंतर नहीं होना चाहिए। यदि एक कंपनी बनाई कि भाई हमारा बाइक 1 लीटर में 80 किलोमीटर जाता है तो 1 लीटर में 80 किलोमीटर जाना चाहिए। यदि नहीं जाता है तो वर्ड्स और डीड्स में मैच नहीं रहा और उसका रेपुटेशन क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो एक ही बहुत ग्रेटेस्ट चीज़ है क्या कि बाय मैचिंग words and deeds the reputation can be enhanced or maintained up to best level. Okay, a satisfied customer is the best advertisement for the quality image of any company. Another same thing, a satisfied customer, यदि एक कस्टमर आप किसी होटल में जाते हैं, आपको बढ़िया उसका सर्विस लगता है, तो आप आकर के घर में बताते, किसी को रिकमेंड, अरे यार उस होटल में जाओ बढ़िया सर्विस मिलेगी, हमने गए थे, और अपना यू विल शेयर योर एक्सपीरियंस एंड प्रॉब्ली यू विल मोटिवेट अदर टू गो ओवर देयर, ठीक है। इसी टाइप से ब्रांड बनता है, ठीक है। तो एक सेटिस्फाइड कस्टमर इज द बेस्ट एडवर्टीजमेंट for the quality image of any company. There are too many companies who pay lip service to quality because it is an in thing, जो हम बोलते हैं लिप सर्विस, ठीक है, लिप सर्विस, but have no qualms while passing सॉडी गुड्स टू द कस्टमर। अब हम क्या कहते हैं, मुंह मीठा करके तो बेच लेते हैं एक बार, लेकिन प्रोडक्ट हम जो है ख़राब बेच लेते हैं बढ़िया बोल करके। तो क्या होता है क्या कि हम नेक्स्ट टाइम से लोगों को कहता है यार ये तो बस ऐसे ही बेचता है, ओके। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट जो है, और कुछ देख लीजिए इसमें। इट मे अपीयर टू बी गुड बिजनेस फॉर ए शॉर्ट वाइल बट इन लॉन्ग रन इट कैन डू इररिपेयरेबल डैमेज टू कंपनीज क्वालिटी रेपुटेशन। वही चीज़, सेम चीज़ को दूसरे वर्ड में हम कह रहे हैं। इट में अपीयर टू बी गुड बिजनेस, मतलब लिप सर्विस, मतलब बढ़िया मीठा बोल करके एक बार तो बेच लिए, ठीक है, हाँ।
लेकिन लॉन्ग रन में जो है ये हमारा नहीं चल पाएगा। छोटे रन में तो भाई एक बार चलो बेच लिए। जैसे क्या होता है क्या कि जैसे हम ट्रेन में वहाँ पे हम जाते हैं, जो चाय वाला है उसको किसको याद रखते हैं, उसका किसी का ब्रांड नेम थोड़े ही है। लेकिन फिर क्या है, IRCTC क्या हो गया, ब्रांड हो गया IRCTC। अब कहते हैं यार ना बाहर वाले कोई हॉकर से मत लिया करो, IRCTC से लो। IRCTC के जो भी हॉकर्स हैं उनसे खरीदो, एटलीस्ट यू विल गेट द गुड क्वालिटी। ठीक है, तो इसके बाद जो है द स्पेसिफिक मीन्स ऑफ इस्टेब्लिशिंग ए क्वालिटी रेपुटेशन आर फर्स्टली द ensuring that only those products are sold which fully meet the customer's need, ठीक है, and providing efficient after sales service। आफ्टर सेल्स सर्विस का मतलब कि इफ़िशियंट आफ्टर सेल्स एंड सर्विस। आपके यहाँ कोई मेहमान आता है भाई, अब क्या करते हो, उनको खाना देते हो, फिर पूछते हो कि नहीं कैसा खाना लगा है, नहीं तो जो भी या तो वो खामियां बताता है नंबर 1, तो उस खामियां को आप लोग दूर करते हैं। और इस तरीके से हम एक तो क्वालिटी इम्प्रूवमेंट का तरीका भी है, हो सकता है। और दूसरा क्या होता है कि जब उससे हम पूछते हैं तो थोड़ा वो ओबलाइज हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आफ्टर सेल्स एंड सर्विस, जो हमने माल बेच दिया तो कस्टमर उसको लिया, उसको यूज किया, कैसे यूज किया, तो ख़राब हो गया तो क्यों ख़राब हो गया, तो उनको क्या दिक्कतें हैं, फिर से वो ठीक करवाने के लिए क्यों नहीं आया। ओके, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। दीज थिंग्स आर मैटर, दीज एस्पेक्ट्स आर मैटर कि रेपुटेशन के लिए। आजकल देखते ही होंगे कि भाई लोग बाग क्या करते हैं, फीडबैक फॉर्म भरवाते हैं। फीडबैक फॉर्म भरवाते हैं कि नहीं? ओके, तो जब भी हम कोई चीज़ जैसे मोबाइल ख़रीदते हैं या हम कोई बैंक का सर्विस है, एक बार आप उसको बैंकिंग सेवा आप यूज कीजिए या ओला कैब से जाइए, तो क्या होगा, जैसे ओला कैब से उतरे तो वो पूछेगा कि भाई ड्राइवर कैसा था, उसका क्या कहते हैं कंडक्ट कैसा था, इसे पूछते हैं कि नहीं फॉर्म में। और पूछने के बाद आप भी ये होते हैं नहीं यार इसका। और क्या होता है, यदि आप ख़राब रेटिंग देते हैं अकॉर्डिंगली दे ट्राई टू इम्प्रूव, और आपसे ये भी पूछता है कि भाई बताइए कि क्या एरिया है जिसमें हम इम्प्रूव कर सकें, क्या आपको अच्छा नहीं लगा, व्हाट यू हैव नॉट लाइक्ड, व्हाट यू हैव डिसलाइक्ड, लाइक डिसलाइक के भी बारे में पूछता है। वो क्या करता है कि मतलब इससे क्या होता है कि उसका ब्रांड इमेज बढ़ते जाता है। एक तो सबसे पहले क्या होता है, हम जब पूछते हैं क्वालिटी के बारे में, तो जब फीडबैक से हमको क्वालिटी इम्प्रूव करने का भी हमें ये मिल जाता है कि भाई हमारे एट व्हाट फ्रंट वी आर लैकिंग, नंबर 1। और नंबर 2 कि भाई उसको भी लगता है कि भाई इंटीग्रिटी, कि जब हम किसी से पूछते हैं कि हाँ भाई कैसा लगा, आपने होटल में खाना खाया कैसा लगा, ठीक है, तो क्या क्या कमियां हैं, या आप बताइए कोई सजेशंस हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ जब हम पूछते हैं तो उनको फील होता है यार नहीं, हम क्या है, इंटीग्रेटेड हैं ऑर्गेनाइजेशन का, हम भी पार्ट हैं। कस्टमर्स आर थिंकिंग दैट दे आर द पार्ट ऑफ द कंपनी when this type of questions are asked. Okay, so we have discussed the two things that regarding quality improvement. You should remember these two things, that is the ensuring that only those products are sold which fully meets the customer's need, ठीक है, अब फॉल्टी प्रोडक्ट तो नहीं बेचेंगे। और दूसरा है प्रोवाइडिंग इफिशिएंट आफ्टर सेल्स सर्विस। अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। विद दिस यू माइट हैव अंडरस्टूड द डेवलपमेंट ऑफ
and you may describe the development of quality reputation, how the quality reputation can be developed. Okay, after this I am coming to the topic like after sales service. We have seen in earlier that reliability and maintainability are important quality parameters for certain types of product. ठीक है, कुछ प्रोडक्ट में है जिसमें रिलायबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी की भी, मेनली ये डिपेंड करता है मशीनरी में एंड सम कंपोनेंट्स में. ठीक है, हमारे गैजेट्स जो खरीदते हैं ना, तो उसमें हमारी रिलायबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है. ठीक है, एंड इट शुड बी रियलाइज्ड दैट however good a product may be when it is new, it is of little use if it cannot be easily maintained in a serviceable condition during its intended life. ठीक है, तो अब इसमें बात है कि प्रोडक्ट चाहे कितना भी बढ़िया हो, ठीक है, तो प्रोडक्ट चाहे कैसा भी हो, ठीक है, नया में तो बढ़िया रहता है, लेकिन बाद में क्या होता है कि मेंटेन बढ़िया से नहीं होता है तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है. ठीक है, तो क्या है, इन एडिशन टू द इनहेरेंट क्वालिटी ऑफ ए प्रोडक्ट, इफेक्टिव आफ्टर सेल्स सर्विस इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन इंश्योरिंग रिलायबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी. क्या होता है कि कभी कभी लोग ले जाता है प्रोडक्ट, शुरुआत में एक आध महीना बढ़िया चलता है, फिर उसका फंक्शन काम नहीं करने लगता है. क्यों नहीं काम करने लगता है? या तो वो बढ़िया से ऑपरेट नहीं करता है, नंबर 1. और नंबर 2, यदि ऑपरेट करता है बढ़िया से तो कुछ चीज़ें क्या होता है क्या कि वो मेंटेन नहीं करता. कुछ चीज़ें क्या होता है, वेयर आउट हो जाता है, घिस जाता है, पार्ट्स है, कुछ कंपोनेंट उसके ख़राब हो जाते हैं. तो जैसे आपके स्कूटर खरीदते हैं या मोटरसाइकिल खरीदते हैं, वो देता है कंपनी कहता है ना कि भाई कि 2 महीने के बाद आइए, पहला सर्विस, फिर दूसरा सर्विस, फिर तीसरा सर्विस. फिर क्या होता है कि वो मोटरसाइकिल क्या हो जाती है, रवां हो जाती है, और वो मोटरसाइकिल क्या होती है, लॉन्ग रन में चलती है. ठीक है, तो और कई प्रोडक्ट क्या होता है कि जैसे कई मशीनरी वगैरह खरीदते हैं, मशीनरी खरीदने के बाद क्या होता है कि वो उसका बहुत सारे फीचर्स होता है, वो हमें पता ही नहीं होता है. तो हम काम करने जाते हैं, पता चलता है कि उससे हम गलत प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब गलत यूज हो रहा है, मतलब करना चाहिए कैसे और हो कैसे रहा है. ओके, तो आफ्टर सेल्स एंड सर्विस जो है वो इम्पॉर्टेंट है. देयर मतलब क्या है कि रिलायबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी. देयरफॉर कस्टमर्स आर इंक्रीजिंगली बिकमिंग अवेयर ऑफ द नीड फॉर एफिशिएंट आफ्टर सेल्स सर्विस एंड दिस फैक्टर एक्सर्ट्स कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस इन परचेजिंग डिसीजन. ठीक है, अच्छा, अब देखेंगे कि एक कंपनी है, मान लीजिए एक ऑटोमोबाइल की कंपनी है जिसके ज़्यादा सर्विस सेंटर हैं. ठीक है, और दूसरा कंपनी है जिसके सर्विस सेंटर कम है. ओके, तो which automobile you will prefer? Obviously we will prefer the automobile of a company which is having the service center, means at many places, at large places. ठीक है, तो क्योंकि भाई ख़राब होगा तब कहाँ जाएंगे. ठीक है, ख़राब होगा तो हम कहाँ जाएंगे, ये भी एक प्रॉब्लम है. ठीक है, तो ये सब ऑटोमोबाइल में या मशीनरी वगैरह में हमें ऐसा देखा जाता है.
आफ्टर सेल्स एंड सर्विस, जो बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। ठीक है, दिस मे नॉट नेसेसरली बी ड्यू टू पुअर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, it can be due to various other reasons such as ignorance of customer, ठीक है, ignorance of the customer regarding ignorance of customer regarding product capability, incorrect usage or maintenance, unduly harass environmental condition etc. तो हो सकता है कि प्रोडक्ट क्या होता है कि इग्नोरेंस ऑफ कस्टमर, कस्टमर क्या होता है, वो भगवान है, कस्टमर क्या है, वो भगवान है, देवता है, उनको हमको बढ़िया चढ़ावा चढ़ाना है, बढ़िया क्वालिटी का, नहीं तो क्या होगा, वो नाराज़ हो जाएगा। एक बार नाराज़ हो गया तो भाई फिर कस्टमर वो क्या होगा, वो भाग जाएगा हमारे ये से। ठीक है, जैसे भागा तो वो 3-4 को और लेकर के भाग जाएगा। एंड इन दिस वे यदि ज़्यादा कस्टमर हमसे, यदि हम इग्नोर किए कस्टमर को, तो हमारा ब्रांड नेम क्या हो जाएगा, चला जाएगा। तो कस्टमर को हमें बांध करके रखना है एनीवे। ठीक है, तो कैसे बांधेंगे कस्टमर, तो आफ्टर सेल्स एंड सर्विस हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, उनके विचारों का ख्याल रखा जाएगा। तो ये ऐसा ना करके हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, प्रॉब्ली यू विल बेटर अंडरस्टैंड कि क्या था कि एक आदमी एक पंखा बेच रहा था, बोल रहा था इस पंखे का कॉस्ट है 10 रुपया और ये जो है वो लाइफ लॉन्ग तक चलेगा, मतलब वो ऐसे हाथ से झलने वाला पंखा नहीं होता है, तो वो पंखा बेच रहा था और कह रहा था कि भाई ये पंखा ले लो और ये लाइफ लॉन्ग चलेगा, ठीक है, ये कभी नहीं टूटेगा। आदमी ने खरीद लिया, एक आदमी ने, वो घर आया तो 2-4 बार ही झला और पंखा टूट गया। ठीक है, अब वो गया वहाँ उसके पास, बेचने वाले के पास, बोला भाई तुम तो कह रहे थे कि पंखा लाइफ लॉन्ग तक चलेगा, ये तो एक दिन भी नहीं चला। तो वो जो बेचने वाला था उसने बोला भाई साहब ऐसा है कि आप कैसे यूज कर रहे थे, तो बोला हम ऐसे ऐसे हाथ से लिए और ऐसे ऐसे मुंह के पास, मतलब चेहरे के फेस के पास ले जा कर के ऐसे ऐसे उसको हिलाए। अच्छा, ऐसे थोड़ा ही था ना, आपको पंखा को सीधा स्थिर पकड़ लेना था दोनों हाथ से और आपको मुंडी हिलाना था। ठीक है, तो उसने क्या किया कि जब, मतलब यहाँ पे फॉल्ट क्या है कि अब वो तो भाई एक बार तो बेच लिया, दोबारा तो वह कस्टमर नहीं जाएगा। तो बात यहाँ क्या है कि जब हम चीज़ें बेचते हैं, ठीक है, कोई चीज़ सेल्स होती है तो उसके साथ साथ हमें क्या होता है कि यूज़र मैनुअल कि उसको कैसे यूज किया जाए ये भी लिख करके बताना होता है। ठीक है, उसको लिख करके बताना होता है। ठीक है, तो अब है कि प्लानिंग आफ्टर सेल्स एंड सर्विस, कि सेल्स और सर्विस, आफ्टर सेल्स और सर्विस को कैसे प्लान किया जाए। तो पहला चीज़ है एजुकेशन ऑफ कस्टमर। ठीक है, दूसरा मेंटेनेंस एंड रिपेयर व्हेयर रिक्वायर्ड। ठीक है, एंड लुकिंग इनटू कस्टमर कंप्लेंट्स। तो ये 3 चीज़ है, ये 3 चीज़ हम यदि प्लान कर लें तो हमारा आफ्टर सेल्स एंड सर्विस क्या हो गया, प्लान हो गया। अब एजुकेशन ऑफ कस्टमर, यू डोंट थिंक दैट ओके मीन्स फॉर्मल एजुकेशन है, उसको BA MA कराना है, PhD कराना है कस्टमर को, मतलब ये नहीं कि मतलब उसको प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट के यूज़ के बारे में एजुकेट करना है। ठीक है, तो यदि हम उसको एजुकेट नहीं करेंगे, मतलब कि उसको कैसे यूज होगा, तो प्रॉब्ली क्या कहते हैं कि वो गलत ये करेगा और फिर आकर के कंप्लेन करेगा भैया वैसा है कि हमारा आपका प्रोडक्ट तो फेल हो गया। तो एजुकेशन ऑफ द कस्टमर रिगार्डिंग इट्स यूसेज। ठीक है, सो एजुकेशन इज़ द educating the customer is the part of normal job of sales personnel. Before a customer buy anything, he must know about the characteristics and capabilities of the product to enable him
टू डिसाइड whether it will meet his requirement or not, और किस कंडीशन में उसका रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगा। ठीक है, जैसे कोई एसी खरीदता है, उसको चलाने के लिए तो आना चाहिए, मतलब कैसे चलाएगा। पता चला क्या कि एकदम से कुछ ऐसा कंडीशन है और उसमें वो कुछ और ये कर रहा है, तो उसका प्रॉपर यूज होना चाहिए। ठीक है ना, तभी वो उसके फंक्शनैलिटी। अब जैसे ये है फ्रिज है, तो फ्रिज है तो भाई को उसमें क्या कहे कि फ्रिज ज़्यादा दिन तक कैसे चलेगा जब उसमें स्टेबलाइज़र से जोड़ करके चलाएं। लेकिन क्या होता है कि हम स्टेबलाइज़र जोड़े ही नहीं और हम ऐसे ही 3 फेज पे डाल दिए, और क्या हुआ, वोल्टेज अप एंड डाउन हुआ और फ्रिज फेल हो गया। और वो पहुंच जाए बोले भैया ऐसा है कि ये तो फ्रिज की आपने गारंटी दिया था 3 साल और ये देखो तुरंत फूक गया। ठीक है, तो उसको एक कस्टमर को एजुकेट करना होगा ना, भैया ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना हो वोल्टेज में। ठीक है, जो सप्लाई वोल्टेज है जो आप फ्रिज खरीद रहे हैं तो ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो वो अब इस टाइप से हमें कस्टमर को एजुकेट करना होगा। ओके, ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग है क्या कि मेंटेनेंस एंड रिपेयर। मेंटेनेंस एंड रिपेयर, तो मेंटेनेंस एंड रिपेयर में मेंटेनेंस एंड रिपेयर कि जब उसको, जैसे हमारा ऑटोमोबाइल का केस का इसमें बहुत सटीक एग्जांपल फिट बैठता है कि जैसे देखोगे किसी ऑटोमोबाइल में या ज़्यादातर 3 व्हीलर में जैसे आगे बैठते हो ना, तो वहाँ पे देखोगे वो लिखा हुआ रहता है कि भाई इतना दिन के बाद फिर रिपेयर कराएं, इतना दिन के बाद ओवरहॉल कराएं, इतना दिन के बाद मोबाइल ऑयल चेंज करें, इतना किलोमीटर चलने के बाद ब्रेक ड्रम चेंज कर दें। ठीक है, ये सारे लिखा रहता है। तो और वो फिर जाएंगे तो मेंटेनेंस एंड रिपेयर, तो फिर हमारे यहाँ लेते आइए सर्विस सेंटर पे और हम उसको ईज़िली मेंटेनेंस और जो भी मेंटेनेंस और रिपेयर जो है इट विल बी गेट इट डन बाय द फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स कंपनी। ओके, तो एट द सर्विस पॉइंट, एट द सेल्स एंड सर्विस पॉइंट मोस्टली देखोगे कि सेल्स और सर्विस पॉइंट दोनों साथ साथ ही रहते हैं। सेल्स और सर्विस पॉइंट दोनों क्या होते हैं, साथ साथ ही रहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट थिंग है कि क्रिएशन ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। मेंटेनेंस एंड रिपेयर कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे प्लान किया जाता है, उसमें प्लानिंग क्या करना है, क्योंकि क्रिएशन ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो कितने हम सर्विस सेंटर उसमें बनाएं, कहाँ कहाँ पे बनाएं, उसमें हम कैसा पर्सन रखें। ठीक है, ये सब तो प्लान करना पड़ेगा ना, पहले तो क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर उसमें उसका मैनेजिंग कैसे हो, हाउ द सर्विस सेंटर विल बी मैनेज्ड। ओके, और नेक्स्ट थिंग क्या है कि सेटिंग अप ऑफ रिपेयर फैसिलिटीज़। तो हम क्या क्या रिपेयर करेंगे, व्हाट आर द थिंग्स वी विल रिपेयर। तो रिपेयर तो ऐसे तो हो नहीं जाएगा, तो उसके लिए हमें क्या होगा, मशीनें लगानी होगी या इक्विपमेंट लगाना होगा। ठीक है, या हमें उसका जुगाड़, जिग्स, फिक्सचर जो भी है एक्सेट्रा आर टू बी इंस्टॉल्ड। तो वही है सेटिंग अप ऑफ रिपेयर फैसिलिटीज़। ठीक है, उसके बाद है कि फीडबैक ऑन रिपेयर प्रॉब्लम्स। फीडबैक ऑन द रिपेयर प्रॉब्लम्स, तो भाई रिपेयर कर दिए, रिपेयर करने के बाद क्या हुआ। जैसे हम सामान बेचने के बाद हम कहते हैं कि आपके सामान का क्या हुआ, अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, कितना हुआ, आप सेटिस्फाइड हैं कि नहीं हैं, कितना बार यूज कर रहे हैं, कितना किलोमीटर चलाए, क्या क्या प्रॉब्लम्स हुआ। उसी तरीके से अब क्या है कि जब हम सर्विस भी कराते हैं, जब हम सर्विस कर देते हैं, ठीक है, सर्विसिंग कर दिए, तो सर्विस करने के बाद भी उसका फीडबैक लेंगे। ठीक है, वी विल गो फॉर द फीडबैक। ओके,
So next thing is the guarantee of quality. So you can understand that guarantee is a powerful sales tool if used properly, but like all powerful weapons, it can cause considerable harm if misused. Very great thing. द गारंटी इज़ ए पावरफुल सेल्स टूल। यदि हम कहें कि भाई इसके यहाँ चलने की 100% गारंटी है, 99, या हम कैसे कहें कि आप ये चलिए इसके 1 साल तक फंक्शन करने के क्या कहते हैं कि 99% गारंटी है। अब क्या हुआ कि वो आदमी यूज किया, पता चला, आपने कहा था कि 1 साल चलने की गारंटी, पता चला क्या कि 11 महीने चला, ठीक है। अब वो आ गया भैया 11 महीने में तो हमारा ख़राब हो गया। तो अब हम क्या कहे थे, तो हमारे पास आया था, हम कह सकते हैं उसको कि भाई ऐसा है कि हम तो कहे थे कि 1 साल चलने की 99% गारंटी है, 1% तो फेलियर का चांस था, तो ये 1% में आ गया। तो ऐसे करके हम बात को मोल्ड भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। ऐसे करने से क्या होगा, कस्टमर हमारा नाराज़ हो जाएगा। तो इसको जो गारंटी है, ठीक है, इसको हम कैसे यूज करते हैं। एक्चुअली गारंटी इज ए लीगल डॉक्यूमेंट। गारंटी इज ए लीगल डॉक्यूमेंट। जब आप परचेज करने के लिए जाते हैं, आपने बहुत मोबाइल परचेज किया होगा, तो उसके साथ एक फॉर्म आता है, ठीक है। उसमें भर करके कस्टमर, वो जो सेल्समैन है, वो क्या करता है, दस्तखत करके देता है, ठीक है। उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखे होते हैं, आपने कभी पढ़ा नहीं होगा। उसमें जब पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि किस केस में क्या क्लेम हम कर सकते हैं, ठीक है, किस केस में। एवरीथिंग मेटिकुलसली इट इज़ मेंटेन्ड इन द गारंटी पेपर। Actually, guarantee is written on a paper. It is a legal document. And गारंटी यदि वो नहीं करता है तो भाई क्या होगा, आप कहाँ पे गारंटी क्लेम कर सकते हैं। उपभोक्ता फोरम में कर सकते हैं कि कोर्ट में कर सकते हैं, कहाँ पे ये होगा। ये नहीं कि अब हम लेकर के, अब वो इसमें भी लिख देता है कि द क्लेम्स द सूट कैन बी मेड इन द इंडिया इटसेल्फ। पता चला कि आपने एक घड़ी लिया, घड़ी को उसने लिखा हुआ है कि भाई 1 साल चलने की, 3 साल चलने की गारंटी है। पता चला आप विदेश चले गए, अब वहाँ पे जा कर के आप ख़राब हो गई घड़ी, तो अब आप विदेश में उसको क्या कहते हैं, कहेंगे कि कोर्ट में, विदेश के कोर्ट में चले जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, उसमें लिखा हुआ है, उसमें पहले से लिखा हुआ है कि आप कहाँ पे केस कर सकते हैं, किस केस में आपको क्या मिलेगा, ठीक है। हाँ जी, जैसे आपके ये है ना, पॉलिसी है, जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि सारा चीज़ लिखा रहता है। जैसे आपने एक पिक्चर देखा होगा, ओ माय गॉड लिखा हुआ, देखें कि नहीं, उसमें लिखा हुआ था क्या, ओ माय गॉड देखें कि नहीं आप लोग। अच्छा, तो उसमें लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था कि इफ एनी मिसहैप विल हैपेंड ड्यू टू एक्ट ऑफ गॉड, the claim will not be admissible. The claim will not be admissible. ठीक है, तो उस क्लॉज में तो वो फंस गया, ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को। तो उसको क्लियरली जब आप प्रोडक्ट खरीदते हैं तो यहाँ पे एजुकेशन वाली बात है, यहाँ पे एजुकेशन वाली बात है। तो अभी भी देखते हैं कि जब आपको कोई चीज़ बताया जाता है, आजकल तो फ़ोन पे बताते हैं और कहता है कि आप ये कॉल रिकॉर्ड हो रहा है, ये कॉल रिकॉर्ड हो रहा है, मतलब कि आपको एजुकेट किया गया है। मतलब आपको ये नहीं कि खाली दस्तखत करवा दिया, क्योंकि ये भी ऑब्वियस है कि 10-15 लाइन या 1 पेज का डॉक्यूमेंट कोई नहीं पढ़ता है, ओके। 1 पेज का पूरा जो लिखा है, कितना छोटा छोटा लिखा रहता है, कोई नहीं पढ़ता है। तो कस्टमर को आपने सारे स्थिति के बारे में समझाया है कि नहीं समझाया है,
सेल्समैन का ये लेबिलिटी बनता है, जो बेचने वाले की ये लेबिलिटी बनती है कि वो कस्टमर को सारी चीज़ें बताए. Okay, with this you might have understood